Hello students, my name is Hiral Lotia from Jain English Medium School. Kids, we completed our chapter number 3, right? We already started chapter number 4, the nervous system. Today is session number 2, right? In session 1, what I told you? I explained to you about vocabulary words and meaning, right? In today's session, I am going to introduce all the information about the nervous system and all about the brain. ये सेशन में मैं आपको नर्वस सिस्टम और द ब्रेन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको दूंगी मैं. तो before I start explaining about today's session, let's revise our last sessions, vocabulary words and meanings. So फटाफट से देख लेते हैं meanings. Vocabulary words. Number 1, nervous. Nervous, nervous. Number 2, cerebrum, cerebrum, cerebrum. Number 3, cerebellum, cerebellum, cerebellum. Number 4, brainstem, brainstem, brainstem. Number 5, nerves, nerves, nerves. Number 6, sensory, sensory, sensory. Number 7, reflex, reflex. Number 8, nasal, nasal. Number 9, mucus, mucus. Number 10, nostrils, nostrils. Number 11, nasal, nasal. Number 12, cavity, cavity. Number 13, retina, retina. Number 14, pupil, pupil. Number 15, iris, iris. Let's pronunciate it once again. Nervous, cerebrum, cerebellum, brainstem, nerves, sensory, reflex, nasal, mucus, nostrils, cavity, retina, pupil, iris. Now meanings. Number 1, motor, relating to muscular movement or the nerves activating it. मोटर मतलब कोई भी मस्कुलर मूवमेंट होती है, उसमें से नर्व्स जो एक्टिवेट होती है उसको हम क्या बोलेंगे? मोटर. नाउ नंबर 2, सेंसरी, कनेक्टेड विथ योर फिजिकल सेंसेस. हमारी जो फिजिकल सेंसेस होती है ना उसके साथ सेंसरी कनेक्टेड होती है. नाउ नंबर 3, reflex, an action or a movement of your body that happens naturally in response to something and that you cannot control. Reflex एक ऐसी एक्शन है जो बॉडी में अचानक से होती है और जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते. जैसे कि हम कोई भी गर्म चीज़ को छू लेते, कोई भी शार्प चीज़ को छू लेते, विदाउट एनी ब्रेन्स कमांड हम उस चीज़ पे रिएक्ट कर देते. वो कौन सा एक्शन होगा? वो रिफ्लेक्स एक्शन होगा, राइट किड्स? Now number 4, mucus,
A sticky substance that is produced in some parts of the body, especially the nose. मतलब नोज के अंदर एक स्पेशली स्टिकी सब्सटेंस होता है जो पॉल्यूशन की वजह से हम ब्रीथ करते हैं, वहाँ पे नोज के अंदर हेयर्स होते हैं, उससे वो कचरा और वो कोई भी सब्सटेंस अंदर जाने देता नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टिकी सब्सटेंस में, राइट। तो उससे हम क्या बोलेंगे, म्यूकस। Number 5, nostril. The two openings at the end of your nose that you breathe through. तो यहाँ पे two openings होती है जिससे हम breathe करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, nostril. Clear kids? Now here we completed revision of section number 1. Now in session number 2, right? Now today is session number 2. I am going to explain about the nervous system. Okay? Now ये nervous system क्या है? Smelling a flower, flower की smell करते हैं, फिर listening to music, music को भी सुनते हैं, stroking a pet, पेट के पीछे भी जाते, कोई भी एनिमल को स्ट्रोक करते हैं हम लोग, उसके पीछे जाना, उसकी कई बार हम सड़ी भी कर लेते हैं, राइट। तो एंड टेस्टिंग चॉकलेट्स, डिफरेंट चॉकलेट्स भी टेस्ट करते हैं, हम बोलते भी है कि ये इसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है, इसमें चॉकलेटी फ्लेवर है, इसमें कोकोनट का फ्लेवर है, हम बोलते हैं ना किड्स। तो हम डिफरेंट चॉकलेट्स भी टेस्ट करते हैं। Are activities that cannot be done without our brain. ये सारी की सारी एक्टिविटीज ब्रेन के बिना पॉसिबल ही नहीं होती है किड्स। हम चॉकलेट्स खाएंगे तो उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा दिस इज अ चॉकलेट। कोई भी पेट को स्ट्रोक करना, म्यूजिक को लिसन करना, फ्लावर्स की स्मेल करना, फ्लावर्स की स्मेल करते तो पता चलता है ना, दिस इज अ सनफ्लावर, दिस इज अ स्मेल ऑफ रोज। इवन हम अपनी आईज को क्लोज करेंगे ना, अचानक से कोई भी स्मेल आएगी ना, तो वी कैन फील इट कि दिस इज अ स्मेल ऑफ रोज, सनफ्लावर, लिली, राइट, एनीथिंग। बिकॉज ये सारा का सारा वर्क कौन करता है, ब्रेन करता है। कौन करता है, ब्रेन। लेट अस लर्न अबाउट the brain is an organ of our nervous system. हमारी नर्वस सिस्टम है ना पूरी की पूरी, उसका मेन ऑर्गन कौन सा है, ब्रेन। ब्रेन इज द पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ब्रेन एक पार्ट है हमारी नर्वस सिस्टम का। चलो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। द नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है ना, वो हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के होते हैं ना, उसको कंट्रोल करते हैं। We have so many organs in our body, right? तो उसका उन सभी को कंट्रोल कौन करता है, the nervous system. Kids, आप बहुत ही शैतान हो, ऐसा कुछ करते तो आपको कौन कंट्रोल करता है, आपके पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। स्कूल में आपके टीचर्स आपको कंट्रोल करते हैं। आप किसी के घर पे जाओगे तो वहाँ पे कोई एल्डर्स होगा, वो भी आपको कंट्रोल करेगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें होती है, आपको भी कंट्रोल करने के लिए चाहिए। हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, तो कि हमारी नर्वस सिस्टम। क्लियर किड्स? द ब्रेन, नर्व्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द नर्वस सिस्टम। ये सारे के सारे पार्ट्स है ना, ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड, इससे हमारी नर्वस सिस्टम बनती है। किसे हम सपोज 5th ग्रेड में अकेले एक स्टूडेंट को तो नहीं पूरा ग्रेड बोल सकते ना, सारे के सारे स्टूडेंट्स को मिला के हम बोलते हैं ये हमारा 5th ग्रेड है, उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स 12 है, 15 है, 20 है, जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको मिला के हम 5th ग्रेड बनता है, राइट किड्स। तो पूरे के पूरी नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, तो कि द ब्रेन, नर्व्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ये तीन चीजों को मिला के क्या बनता है, हमारी नर्वस सिस्टम। Once again I am reading this sentence. The nervous system controls all the organs of our body. The brain, nerves and the spinal cord form the nervous system. Now I hope so kids you clear about the nervous system. Now I am going to explain you about
is located inside the skull. मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था ना, यहाँ पे स्कल होता है, स्कल के अंदर हमारा ब्रेन होता है। स्कल का क्या काम होता है? स्कल का काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। हमारा बॉडी में सब वर्क ब्रेन का ही होता है, सारे के सारे कमांड है वो भी ब्रेन देता है, राइट। ब्रेन के कमांड के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन ये जो अपने आप होती है, राइट, तो वो तो कभी कभी होती है, उससे पहले सब वर्क ब्रेन का ही होता है। तो ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट पोर्शन है, उसको प्रोटेक्ट भी करना है, तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल। स्कल पहले आता है, उसके अंदर क्या आता है? ब्रेन। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर लोकेटेड है, राइट। इट कंट्रोल्स आवर बॉडी मूवमेंट्स। ब्रेन हमारे बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल भी करता है। जैसे कि हम रनिंग कर रहे हैं, राइट, तो करते जाए करते जाए करते जाए। अगर सामने कोई व्हीकल आ रहा है, कोई सामने पर्सन खड़ा है, तो क्या हम रनिंग अपनी कंटिन्यू ही करेंगे? नो, राइट। तो हमारा ब्रेन हमें कमांड दे रहा है कि हाँ आगे कोई ऑब्स्टेकल है, कि आगे कोई पर्सन खड़ा है, सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, तो हमारे पूरे के पूरी बॉडी मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। हम कोई भी ऐसे तैसे करके सब कुछ कर लेते नहीं है, राइट। तो clear kids, it controls our body movements also. It also helps us to store information. ब्रेन क्या है? जो हमारे ब्रेन मतलब कि हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। आप बोलते हो ना कि मैं छोटा था तो ये करता था, फिर मैं उसके बाद ये करता था, मैं खेलता था, मैं छोटा था तो बहुत से स्मार्ट था। आपके दिमाग में होता है ना कि मैंने एक बार इसको ये मार दिया था, इसकी पेंसिल मैंने ले ली थी, एक बार टीचर को मैंने छेड़ा था, मतलब कि सताया था, हम ऐसा कुछ करते हैं ना। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी माइंड में स्टोर कौन करता है? ब्रेन। आपको याद होगा कि मेरे लास्ट बर्थडे में मम्मा ने मुझे सरप्राइज दी थी, बड़ी केक लाए थे। लास्ट बर्थडे में डैड ने मुझे साइकिल गिफ्ट की थी। लास्ट बर्थडे में मुझे कार गिफ्ट हुआ था। ये सारी की सारी चीजें आपको ब्रेन में स्टोर रहती है, राइट। लास्ट ईयर हमारा साइंस दूसरे दीदी लेते थे, और उसका नेम भी आपको याद रहा होगा, होता होगा ना। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कौन करता है? ब्रेन। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें याद रहती है सिर्फ पढ़ाई के बिना, राइट। पढ़ाई भी हम याद रखेंगे ना अच्छी तरह से, तो वो इंफॉर्मेशन भी हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाएगी। जब आप किड थे, प्ले हाउस में जाते थे, तब आप 1 to 10 करते थे, A to Z करते थे, वो सब कुछ आपको याद है ना? रीडिंग, राइटिंग, सब कुछ। नाउ यू आर सच एन एक्सीलेंट किड्स, राइट। आप बहुत ही स्मार्ट हो गए, यू आर इन ग्रेड 5। तो क्या है कि सब इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर होती है, उस वजह से ये सब कुछ होता रहता है। नाउ द ह्यूमन ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स। किड्स, हमारे ह्यूमन ब्रेन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। हमारे ह्यूमन ब्रेन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। किड्स, यहाँ पर मैं आपको इमेज शेयर कर रही हूँ, ब्रेन का दिख रहा है, द ह्यूमन ब्रेन लिखा है, द ह्यूमन ब्रेन। वहाँ पे यहाँ पे पहला वाला क्या है? सेरेब्रम। क्या है ये? आगे के पोर्शन को क्या बोलेंगे? सेरेब्रम। फिर नीचे से स्टेम जैसा निकल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ब्रेन स्टेम। फिर उस तरफ कौन सा? उसके ब्रेन स्टेम के बाजू में क्या है? सेरेबेलम। क्या है? सेरेबेलम। ये 3 मेन पार्ट्स है ब्रेन के। क्या है? 3 मेन पार्ट्स। कौन कौन से? सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम। चलो और 3 टाइम्स बोलो। cerebrum, brainstem, cerebellum. Cerebrum, brainstem, cerebellum. Last time. Cerebrum, brainstem, cerebellum. Clear kids? आपको याद रहा नहीं है? अभी I am going to give you information about cerebrum. Cerebrum आपको दिख रहा है? It is the largest part of the brain. वो पूरा का पूरा ऊपर का पार्ट है, वो कौन सा है? सेरेब्रम है, राइट। तो वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट वाला पार्ट है। क्या है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तीनों के तीनों पार्ट में से सबसे लार्जेस्ट वाला कौन सा है? सेरेब्रम। कौन सा है? सेरेब्रम, राइट किड्स। नाउ इट मेनली कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स।
इसका क्या काम है? तो कि हमारी 5 सेंस को उसके फंक्शंस को कंट्रोल करना। पांच सेंस कौन कौन सी होती है हमारी? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। ये पांचों के पांचों हमारी सेंस ऑर्गन है। तो सेरेब्रम क्या है? इट मेनली कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। मतलब हमारी पांचों की पांचों सेंस को फंक्शन करना, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करना। क्लियर किड्स? सेरेब्रम किसको कंट्रोल करता है? किसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है? हमारी 5 सेंसेस को कंट्रोल करता है, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। क्लियर किड्स? नाउ नेक्स्ट, सेरेबेलम। सेरेबेलम आपको दिख रहा है ना? ब्रेन स्टेम के उस तरफ कौन सा पार्ट है? सेरेबेलम, राइट? It is situated below the cerebrum. सेरेब्रम के नीचे का पार्ट है वो कौन सा है? सेरेबेलम का। It means it is situated below the cerebrum. वो एकदम सेरेब्रम के नीचे का पार्ट होता है, वो किसका है? सेरेबेलम का। It mainly controls the working of the muscles. हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं, राइट? तो ये क्या करता है? वो हमारा वर्किंग मसल्स, हमारा हम कोई भी वर्क करते हैं तब हम मसल्स का यूज करते हैं। सपोज राइट नाउ आई एम राइटिंग समथिंग, ऐसा तो मेरे मसल्स का वर्क हुआ, तो वो वर्किंग मसल्स को कंट्रोल करता है सेरेबेलम। वर्किंग मसल, शांति से मैं सोई हूँ, बैठी हूँ, तो मसल्स का कोई वर्क ही नहीं है, तो उसको कंट्रोल भी नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ भी वर्क कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे हैंड मूवमेंट कर रही हूँ, तो उसमें मसल्स की मूवमेंट हो रही है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। कौन कंट्रोल करता है किड्स? सेरेबेलम, राइट? नाउ किड्स, आई होप सो यू क्लियर अबाउट सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। समझ में आ रहा है ना? नाउ थर्ड वन, ब्रेन स्टेम। इट लाइज बीनेथ द सेरेब्रम। मतलब एकदम से सेरेब्रम के बीनेथ में है, नीचे डाउन में, तो एकदम सेरेबेलम के साइड में इस तरफ आपको स्टेम जैसा दिख रहा है, वो क्या है? ब्रेन स्टेम। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है ना ब्रेन स्टेम, वो डायरेक्टली किसको कनेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। किसको कनेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड। इट कंट्रोल्स द हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। ब्रेन स्टेम हार्ट बीट और ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। हार्ट बीट और ब्रीदिंग दोनों ही मेन पार्ट है। हमारा हार्ट बंद हो जाएगा मतलब वी आर डेड, और ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग भी बंद हो जाएगा तो भी वी आर डेड, राइट? तो ये ब्रेन स्टेम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। तो वो किसको कंट्रोल करता है? हार्ट बीट्स एंड ब्रीदिंग। क्लियर किड्स? I hope so you understand all these three: cerebrum, cerebellum and brainstem. Kids, यहाँ पे इमेज आपको क्लियर ही हो रही है, राइट? फिर से मैं तीनों के तीनों वापस से रीड करूंगी ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। सबसे पहले cerebrum. It is the largest part of the brain. It mainly controls the functions of our sense organs. Now cerebellum. It is situated below the cerebrum. It mainly controls the working of the muscles. Now brainstem. It lies beneath the cerebellum. It connects the brain to the spinal cord. It controls the heartbeat and the breathing. So in today's session, what I explained about the nervous system and the brain. I hope so you clear all the things. यहाँ पे मैं आपको कुछ भी blanks पे पूछ सकती हूँ। जैसे I can ask the brain is located inside the blank. किसके अंदर brain locate होता है? तो skull के अंदर. Write down 3 main parts of human brain. तो कौन कौन से आएंगे? Cerebrum, cerebellum and brainstem. Cerebrum is the blank part of the brain. तो वो largest part है, right? तो
इस टाइप की ब्लैंक्स आपको आएगी पीडीएफ में. Try to solve it by your own self. Okay kids, in next session I am going to explain you about nerves. Nerves क्या है, nerves का वर्क क्या है, nerves किस में हेल्प करती है, तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. nerves, फिर है द स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड के रिगार्डिंग भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी. फिर आएगा रिफ्लेक्स एक्शंस, वो भी मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी. रिफ्लेक्स एक्शन के डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दिए दीदी, राइट, तो आपको इजी रहेगा समझने में. ओके किड्स, ट्राई टू कंप्लीट दैट पीडीएफ.